Hello students, now we are going to do very important topic in current electricity, that is first cell. So you know that you have studied in chemistry also that cell is the chemical energy converted into electrical energy, and the cell is a device that is used to provide necessary potential difference to an electric circuit to maintain the flow of current in it. Suppose here we have a device having resistance R, and this is the symbol of cell that is connected across this resistor. So current will flow through this resistor, and current is maintained across or through this resistor with the help of this battery or cell, and the series combination of cells is known as battery. So cell that is provide necessary potential difference to the electric current to maintain the flow of current in it is known as a cell. Okay, this is now next is important, that is EMF. The EMF that is known as electromotive force. What is this? Electromotive force. And nowadays you are studying this in chemistry. Nowadays I have seen that electromotive force is also known as EMF, and this is the symbol of E. E is the symbol of this EMF. So EMF in physics, that is the maximum potential difference between the terminals of the cell when no current is drawn from the cell. You know that in the cell here there are two electrodes, the one having positive charge and second having negative charge, and these two electrodes are inserted in the electrolyte and due to chemical reaction there is accumulation of the positive charge on one plate and a negative charge on the second plate, and when during chemical reaction all of the positive charge get accumulated on the positive charge and negative charge on the second plate, there is a formation, there is building of maximum potential. वहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, एंड व्हेन द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड बिटवीन द टू प्लेट्स and when no current is drawn from the cell is known as electromotive force. जब हम यहाँ पे इस सेल को किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दैट एक्सटर्नल डिवाइस. फिर वो डिवाइस में करंट क्या करता है? फ्लो करता है. देन वी कैन से दैट द करंट इज मेंटेन अक्रॉस दैट डिवाइस विद द हेल्प ऑफ दिस सेल. और आपको पता है देन current flow करता है, there must be potential difference. So when the maximum potential difference is known as what? EMF, electromotive force. The maximum potential difference between the terminal of the cell when no current is drawn from the cell is known as EMF. Or maximum EMF we can say that when no charge is drawn from the cell. When no current is drawn from the cell, or we can say that when cell is not in use. Not in use mean you have purchased a new cell from the market. At that time the maximum potential of the cell is known as EMF. EMF को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम पोटेंशियल. आपने क्या किया? मार्केट से 15 वोल्ट का मैक्सिमम न्यूली फ्रेश एक सेल परचेज कर लिया या 1.5 वोल्ट का परचेज कर लिया, तो उसका जो होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, उसको बोलते हैं ईएमएफ. एंड ईएमएफ आल्सो नोन एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन पर यूनिट चार्ज मतलब वर्क डन पर यूनिट मीन टू से दैट वर्क डन बाय द सेल टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है. अब देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है जब क्या होता है? यहाँ सर्किट में इसको कनेक्ट करते हैं. सपोज यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, कोई भी एनी डिवाइस है या कोई बल्ब है उसके थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया, तो इसमें चार्ज ऐसे फ्लो करता है, ऐसे फ्लो करता है. तो यहाँ पे क्या आता है अपने पास? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं. क्लियर दिस इज. उसके बाद क्या करते हैं? ये चार्ज यहाँ पे तो
अब यहाँ पे सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, क्लियर। या फिर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, क्लियर। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव तो इसको न्यूट्रल कर देगा, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट जो सेल होता है वो तो पोटेंशियल को मेंटेन करता है, क्लियर दिस इज। और अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ कम हो जाएगा। बट ड्यू टू केमिकल रिएक्शन अगर सपोज करो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा था, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर इकट्ठा हो जाता तो इसको न्यूट्रलाइज कर देता। बट ड्यू टू केमिकल रिएक्शन दैट चार्ज कंटिन्यू टू मूव फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अनदर इलेक्ट्रोड, सो द पोटेंशियल ऑफ द सेल दैट रिमेन सेम। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मूव करता है थ्रू आउट द इलेक्ट्रोलाइट, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू यहाँ पे मूव करता है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मेंटेन रहता है, clear this is। So work done by the cell to bring out positive charge from one terminal to the other terminal of the cell is called EMF of the cell। I think this is clear to all of you। उसके बाद आता है अपने पास, देखो we can say this is our cell of EMF E and here we have external device of resistance R and here ओपन की, दिस इज बट ओपन की। तो ये ओपन की है तो इसका नॉट इन यूज, ओके। व्हेन दिस की इज क्लोज देन करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस रजिस्टर। सो व्हेन द हेयर, अब आपको पता पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। अगर सपोज हेयर वी विल कनेक्ट अ वोल्ट मीटर, यहाँ पे हम क्या लगाएं, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करें, वोल्ट मीटर क्रॉस द सेल, देन दिस वोल्ट मीटर विल रीड द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ ऑफ द सेल, ओके। दिस इज नाउ नेक्स्ट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, और वी कैन से दैट व्हेन सेल इज इन यूज, जो सेल क्या होगा, यूज में होगा। तो देखो हम ऐसे करते हैं, देखो ये सेल ये की थी, इसको अब क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। नाउ हियर वी हैव रजिस्टर, ये देखो, and when here voltmeter is connected across this cell, इस वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिए तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मीन अब आपने मार्केट से सेल परचेज किया, अब उस सेल को क्या कर दिया, क्लॉक में यूज कर लिया, ठीक है। क्लॉक में यूज करिए तो क्लॉक स्टार्ट रनिंग, मतलब उसका पोटेंशियल क्या होगा, थ्रू आउट द डिवाइस ड्रॉप होगा। तो जो पोटेंशियल होगा उस सेल का उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखो ये जो अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल में, रेजिस्टेंस जो है इस सेल के पैरेलल में है। तो वट एवर बी द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, दैट विल बी अक्रॉस द रजिस्टर ऑफ दिस एक्सटर्नल रजिस्टर के अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अगर हम इस वोल्ट मीटर को यहाँ पे कनेक्ट करें, यहाँ पे across the resistor, then it will measure the terminal potential difference। तो terminal potential difference is denoted by V से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इसके यूनिट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वोल्ट। और ईएमएफ भी क्या है, ईएमएफ भी क्या है, एक मैक्सिमम पोटेंशियल है, ये क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल। तो इसके यूनिट भी क्या होंगे, वोल्ट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो नेक्स्ट आता है अपने पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल होती है दैट इज ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल टू फ्लो ऑफ द करंट थ्रू इट is known as internal resistance of the cell, and it is denoted by small r, and small r depend upon the nature of the electrolyte, nature of the electrodes and spacing between the electrodes। अब देखो यहाँ पे ये क्या, दो इलेक्ट्रोड्स हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, बीच में क्या रखा है, इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या कर दिया, एक डिवाइस कनेक्ट कर दी। अब पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ से इधर जाएगा, इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट जाएगा, तो देन दिस इलेक्ट्रोलाइट विल ऑफर द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ दिस चार्ज। दिस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज नोन एज, दिस इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोलाइट or electrodes and spacing between the electrodes is known as internal resistance of the cell, okay। This is, so you must know what is internal resistance of the cell। So symbol of the cell with EMF E and internal resistance small r is
this is the symbol of cell. E or this is R. This is the symbol of cell. Or it is also in some books it is represented by this symbol also. Yeah, this is also, and in some books EMF also written with this capital E, not electric field. This is but EMF of the cell. Okay, this is. So one more important in this internal resistance. Internal resistance is always added with external resistor. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये ऐड होती है हमेशा, ठीक है। अगर सपोज करो ये अपने पास एक रजिस्टर है और ये अपने पास एक सेल लगा दिया, ठीक है, और सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई, तो ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर है, ठीक है। ये अपने पास सेल की रेजिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस है, तो ये बोथ आ रही है ना सीरीज, तो बोथ आ रही है सीरीज, देन दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाती है, ऐड होती है आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। ओके, दिस इज। नाउ नेक्स्ट इज कनेक्शन ऑफ द सेल्स। अब देखो कनेक्शन ऑफ द सेल्स मीन कनेक्शन ऑफ द सेल्स, अगर इसका ईएमएफ कितना है E1 है, इसका ईएमएफ कितना है E2 है, देन टोटल पोटेंशियल होता है E1 प्लस E2। ओके, व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड विद ऑपोजिट टर्मिनल्स कनेक्शन, ऑपोजिट टर्मिनल्स आर कनेक्टेड, देन पोटेंशियल क्या होगा, इनका ऐड होगा। एंड सिमिलरली वी कैन कनेक्ट देम इन दिस वे, negative positive negative negative positive is connected here, positive negative positive negative, the opposite terminals are connected, then potential get add। और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया और इसका पोटेंशियल E1 है, इसका पोटेंशियल E2 है। और सिमिलरली हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, ये E1 है E2, और हम करें E1 इज ग्रेटर देन E2, तो इनका जो पोटेंशियल होगा दैट इज व्हाट, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। So that you have to remember, when the cells of similar polarities are connected, then potential क्या होगा, उनका कम होगा, और जब opposite polarity connect करेंगे तो उनका जो potential होगा वो क्या होगा, increase। So these are the important points that you have to understand or you must know before studying the further topics. Those are very important. So thank you, that's all.